یہ کون گستاخ ہے جو سمندری شیطان طفل تیزاب کے تلسمی غار میں بلا اجازت گھس آیا ہے؟ کون ہے؟ وہ تو اچھا ہوا کہ میں یہاں موجود ہوں، ورنہ میری غیر موجودگی میں یہاں آنے والا نیست نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں تمہارے ڈر کے مر ہی گیا تھا، اچھا ہوا تو وقت پر آ گیا۔ اچھا یہ بتا، آج طفل تیزاب کی یاد کیسے آئی؟ بڑے دنوں بعد اپنی بھیانک صورت کیوں دکھائی؟ ایک آدمزاد سندباد آقا کوکب کے کلیجے میں کانٹے کی طرح چبھنے لگا ہے، ان کا جینا حرام کر رکھا اس نے۔ میں اس کی زندگی عذاب کر دوں گا، مگر پہلے یہ تو بتا، شاہ کوکب کے کلیجے کو سندباد کا مرض کیسے لگ گیا؟ آقا کوکب نے اپنے دشمن بادشاہ کے بیٹے شہزادہ عمار کے چنگل سے اپنی بیٹی شہزادی نجم سحر کو بچانے کے لیے جو طلسمی دائرہ بنایا تھا نا، اس کو توڑنے کے لیے سندباد نے 2 کھوپڑیاں حاصل کر لی ہیں۔ ہاں، اچھا ہوا وہ پہلے گلابی کھوپڑی کے پھیر میں نہیں پڑا، ورنہ مچھلیاں اس کی لاش کو کب کا چٹ کر گئی ہوتی۔ مگر اب سندباد گلابی کھوپڑی کے پھیر میں بحر اوقیانوس کے اس سمندری شہر آب رواں میں آنے والا ہے۔ آنے والے کو آنے تو دوں گا، مگر جانے نہیں دوں گا۔ سندباد آتا بھی اپنی مرضی سے ہے اور جاتا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ طفل تیزاب وہ گلابی کھوپڑی کو حاصل کرنے کی غرض سے یہاں ضرور آئے گا، اس لیے شاہ کوکب نے حکم دیا ہے کہ طلسمی کھوپڑی کے پہرے اور بڑھا دیے جائیں۔ میں نے شاہ کوکب کی دی ہوئی طلسمی چابی سے کھوپڑی کو طلسمی تالوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ جب شاہ کوکب نے طلسمی پہرے بڑھا دیے ہیں تو اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اے طفل تیزاب، گلابی کھوپڑی کا نگہبان میں ہوں، اب تجھے اس طلسمی چابی کی نگہبانی اور نگرانی کرنی ہوگی۔ یہ اہم ذمہ داری میں تجھے اس لیے سونپ رہا ہوں کہ سمندر کی دنیا میں تجھ سے بڑھ کر کوئی شیطان نہیں ہے، سب تجھ سے ڈرتے ہیں۔ جو تیرے قریب آتے ہیں بے موت مر جاتے ہیں یقیناً۔ یہ لے طلسمی چابی، تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنا۔ بہت خوب۔ دیکھا جنہیں غرقاب، کیسی محفوظ جگہ میں نے طلسمی چابی کو رکھ دیا ہے جہاں کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچے گا تو منہ کا نوالا بن کر۔ جنہیں غرقاب، بھول جا کہ سندباد نام کا کوئی آدمزاد ہے جو مجھ سے کبھی طلسمی چابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ جاؤ، بے فکر ہو جا۔ فکر تو مجھے پھر بھی لگی رہے گی، کیونکہ سندباد کی عقل مندی اور بہادری کا میں نے بڑا چرچا سنا ہے۔ شاہ کوکب کا طلسمی مخبر تو سندباد کے نام سے ہی کان پکڑتا ہے، کان۔ وہ عجیب و غریب آدمزاد سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے تو بھی غفلت نہ کرنا۔ ہاں، انہیں غرقاب، طفل تیزاب ایک عذاب ہے جسے سمندر کی طوفانی لہریں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ پھر بھلا یہ حقیر آدمزاد کس گنتی میں ہے؟ ایسا طلسمی تیزاب پھینکوں گا کہ سندباد کا وجود
पानी पानी होकर समुद्र में ऐसे गुम होगा कि खुद समुद्र भी ढूंढेगा तो उसे नहीं मिलेगा। पहले उसे आने तो दो। आका सिंदबाद, हम बहरे ओकियानूस के बीचों बीच पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से मुझे तन्हा ही मुहिम पर जाना होगा। हम आपको तन्हा तो नहीं छोड़ना चाहते, मगर आप ही ने हमें मजबूर कर दिया है। खतरों और मुश्किलों के सफर में आपको अकेला छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ रहे हों। देखो, ये सब तुम्हारी मोहब्बत है जो तुम ऐसा सोच रहे हो। बहरहाल तुम मेरी मजबूरी को खुद समझ रहे हो। फिर भी दिल नहीं मानता है कि हम आपको तन्हा जाने दें। हमें आपकी फिक्र रहेगी। हम बहरे ओकियानूस के साहिल पर आपकी वापसी तक इंतजार करेंगे। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने में मुझे कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए मेरी वापसी कब होगी ये तय नहीं है। तुम लोग आखिर कब तक मेरा इंतजार करोगे? तो फिर हम क्या करें? बेहतर यही होगा कि मेरे इंतजार में वक्त गुजारने के बजाय तुम लोग उस खजाने की तलाश में निकल जाओ जो कहकशां की अमानत है। हमारी ताकत, हमारा हौसला आप हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आपकी रहनुमाई के बगैर वो खजाना हासिल कर सकेंगे। किसी के होने या न होने से जिंदगी का कारोबार रुकता नहीं। खुदा ने इस दुनिया में हर शख्स का बदल पैदा किया है। जब मैं इस जहाज पर नहीं था तो इस जहाज पर मेरी जगह तुमने ही संभाली थी आसिफ। और अब जब इस खजाने को हासिल करने की मुहिम में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम्हारी रहनुमाई शहजादी तस्वीर करेगी और इंशाअल्लाह ये मुहिम जल्द ही कामयाब हो जाएगी। शहजादी तस्वीर, तुम्हारे जहन में वो नक्शा महफूज है? हाँ आका सिंदबाद, नक्शे के मुताबिक खजाना जजीरा कहरान के गार में छुपा है और जजीरा कहरान यहाँ से 40 दिनों के फासले पर है। और अगर लगातार सफर किया जाए तो 20 दिनों में भी ये फासला तय किया जा सकता है। आसिफ, बेहतर यही है कि तुम जहाज को लेकर जजीरा कहरान चले जाओ और मैं समुद्री कालीन के जरिए समंदर की गहराइयों में आबाद शहर आबे रवा की तरफ रवाना होता हूँ। मुझे खजाना नहीं चाहिए। यही साहिल पर रुककर हम आपका इंतजार करेंगे। फिर वही जज्बाती बातें। हाँ सिंदबाद, हमें खजाने से ज्यादा तुम्हारी मुहिम में दिलचस्पी है। अगर तुम लोग तो तुम्हारी मोहब्बत एक जंजीर बनकर मेरे पांव से लिपट जाएगी। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं जिस नेक मकसद से निकला हूं उसे अधूरा छोड़ दूं? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुहिम में भी हम आपके साथ रहें। ये सब तुम लोग इसलिए कह रहे हो ना कि तुम समझते हो कि मैं इस मुहिम से जिंदा लौटकर नहीं आऊंगा। खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग भी कामयाब होकर लौटोगे और मैं भी उस गुलाबी खोपड़ी को हासिल करके ही लौटूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐ तिलिस्मी समंदरी कालीन, मुझे समंदर के अंदर शहर आबे रवा ले चल। आका सिंदबाद के हुक्म की अभी तामील करता हूँ।
आओ हम भी अपनी मंजिल जजीरा कहरान की तरफ चलें। तिलिस्मी कालीन, रुक जा। ए अजनबी, तू समंदर में रास्ता तय करने के लिए इस अजीबो गरीब तिलिस्मी कालीन का मोहताज है, इसलिए तेरा ताल्लुक यकीनन हमारी समंदरी दुनिया से नहीं है। किस मुल्क, किस देश, किस वतन से आया है? मैं खुदा का बंदा हूँ और जमीन का बादशाह हूँ। तेरा नाम? लोग मुझे सिंदबाद कहते हैं। यहाँ क्या लेने आए हो? इस सवाल का जवाब जानना है तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे। सवाल पूछो। तूने सवाल पर सवाल किए मगर ये नहीं बताया कि तू खुद कौन है। मैं मौजे बला हूँ, कश्तियों को उलट देती हूँ, जहाजों को पलट देती हूँ। सल्तनत आबे रवां की हुक्मरां शहजादी सदफ अलमास की खास कनीज हूँ मैं। अब बता, इस समंदरी दुनिया में तू यहाँ क्यों आया है? ऐ मौजे बला, अच्छा ही हुआ कि तेरा ताल्लुक आबे रवां से निकला। मैं शहर आबे रवां की ही तलाश में यहाँ आया हूँ। आबे रवां में तेरा क्या काम है? किससे मिलना चाहता है तू? किसकी है जुस्तजू? आबे रवां का जल महल ही मेरी मंजिल है। अगर जल महल तेरी मंजिल है तो पहले सल्तनत आबे रवां की शहजादी सदफ अलमास के दरबार में तुझे चलना होगा, और अगर तू इनकार करेगा तो मैं जबरदस्ती तुझे अपने साथ ले चलूंगी, या फिर अपने हाथों तुझे कत्ल करके तुझे मछलियों की ग़िज़ा बना दूंगी, क्योंकि शहजादी सदफ अलमास की इजाजत के बगैर तू इस समंदरी दुनिया में सांस भी नहीं ले सकता। अब बता, तू मेरे साथ चल रहा है या? आपे से बाहर मत हो मौजे बला। मुझे शहर आबे रवां का कानून तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर जल महल का रास्ता शहजादी सदफ अलमास के दरबार से ही गुजरता है तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। खूब, तू आदमी शरीफ लगता है। चल मेरे साथ। चल ऐ तिलिस्मी कालीन, मुझे शहजादी सदफ अलमास के दरबार में ले चल। जो हुक्म आका। आबे रवां की शहजादी सदफ अलमास तेरी खास, तेरी कनीज खास मौजे बला तेरी खिदमत में हाजिरी दे रही है। हमारी तन्हाई में मुखल होने की वजह क्या तू नहीं जानती कि तेरी ये हरकत गुस्ताखी है, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। शहजादी अलमास, इस गुस्ताखी की मैं मुआफी चाहती हूँ, मगर ये गुस्ताखी मेरी मजबूरी थी। मेरी खास कनीज और मजबूरी का रोना रोए। बता, तुझे किसने मजबूर किया है? एक आदमजाद ने। क्या कहा? एक आदमजाद? हाँ, उसका नाम सिंदबाद है। कहाँ है वो आदमजाद? मैं उसे तेरी खिदमत में पेश करने के लिए अपने साथ लाई हूँ। अपने साथ लाई हो तो फौरन से पेशतर उसे पेश करो।
शहजादी सदफ अलमास की खिदमत में सिंदबाद सलाम अर्ज करता है। तेरा सलाम हमने कबूल किया। अब बता, तू जमीन की दुनिया छोड़कर समंदर की दुनिया में क्यों आया है? मेरी मंजिल इस समंदर में मौजूद जल महल है। तो तू जल महल की तलाश में आया है, मगर क्यों? क्या मकसद है तेरा? मेरा मकसद जिन्हें खरकाब के जल महल से गुलाबी रंग की तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करना है। दीवाने हो गए हो दीवाने। जो तिलिस्मी खोपड़ी हजारों शैतानी और तिलिस्मी पहरों में महफूज है, जिसे आदमजादों की लाखों की फौजें भी हासिल नहीं कर सकती, तो उसे तन्हा और अकेला हासिल करना चाहता है। तू वाकई में दीवाना हो गया है, जो अपनी जान गंवाना चाहता है। जान की परवाह नहीं है मुझे। जब से होश संभाला है, जान हथेली पर लेकर घूम रहा हूँ। जो चाहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। खोपड़ी हासिल करने आया हूँ और हासिल करके ही वापस जाऊंगा। तेरी हिम्मत और बहादुरी को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तू सब कुछ कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। इसलिए मैं तुझसे एक सौदा करना चाहती हूँ। सौदा? कैसा सौदा? जब तक मैं तुझे जल महल जाने की इजाजत नहीं दूंगी, तो वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर तू गुलाबी खोपड़ी हासिल करना चाहता है, जिन्हें गरकाब तक पहुंचना चाहता है, तो तुझे मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। मुझे हर कीमत पर अपना मकसद हासिल करना है। बताए शहजादी, मेरी शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त यह है कि मेरे बाबा जमशेद आबी, जो दरअसल इस सल्तनत के बादशाह हैं, मकाम इबरत में कैद हैं। तुझे मेरे बाबा को कैद से छुड़ाना है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त पहली शर्त की कामयाबी के बाद ही बताई जाएगी। शहजादी सदफ अलमास, मुझे तेरे बाबा जमशेद आबी को कैद से छुड़ा लाना मंजूर है। तू मुझे ये बता कि मकाम इबरत कहाँ है, जहाँ बादशाह जमशेद आबी कैद है। ऐ बहादुर आदमजाद, मैं खुद तुझे शाह बाबा के पास ले जाऊंगी। खुदाया, मैंने अपनी लालच की बहुत सजा भुगत ली है। अब और सजा भुगतने की ताकत मुझ में नहीं रही है। समंदर का बादशाह होकर इस मकाम इबरत में खुद इबरत की तस्वीर बन गया हूँ। लोहे के इस पिंजरे में गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा हूँ। गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा हूँ। अपनी अंधी बेनूर आंखों से रोज रो रो कर तुमसे अपने गुनाहों की मुआफी चाहता हूँ। खुदाया, तू रहीम है, रहम कर। मैंने जिंदगी में कोई नेक काम, कोई नेकी की हो तो उस नेकी के बदले मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा खुदाया, मुझे इस तिलिस्मी कैद से आजाद करा दे। तेरी दुनिया में नेक बंदों की कमी नहीं है। भेज दे किसी नेकी के फरिश्ते को जो इस शैतानी तिलिस्मी पिंजरे के फौलाद को मोम की तरह पिघलाकर मुझे आजाद करा दे। देर न कर खुदाया, भेज दे किसी नेकी के फरिश्ते को
بھیج دے